السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج جلسے کی اجازت ایک تو نہیں ملی کراچی میں، سندھ حکومت نے اجازت دینے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیچارے شہباز شریف کی حکومت ہی کب ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں مسلسل چوتھی حکومت اور عوام نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو ظاہر ووٹ دیا ہے، چوتھی حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی والے مسلسل نئی تاریخیں دیتے ہیں کہ پہلے کہا گیا تھا کہ جی رمضان میں ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی، پھر کہا گیا عید کے بعد، اور اب ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا ہے بیرسٹر گوہر نے۔ انہوں نے کہا جی مئی کے مڈ یا آخر میں آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب اب باہر آ جائیں گے۔ جبکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان اب ہو گئے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ فارم 45 والا مینڈیٹ ہے، فارم 47 والا نہیں ہے، اور یہی موقف جو ہے پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے ظاہر آپ جانتے ہیں کہ 6 جماعتوں کا ایک اتحاد بنایا ہے اور حکومت کے خلاف وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس حکومت کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر مختوم واجد عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امجد آفریدی، بہت شکریہ آفریدی صاحب آپ کا بھی۔ آغاز کرتے ہیں جی یہیں سے کہ اب مسلسل چوتھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور عابدی صاحب آغاز اگر ہم کریں، جب خان صاحب کی حکومت تھی اور اس کے بعد تحریک عدم استحکام آپ لوگ لے کر آئے اور جواز یہ دیا کہ جناب خان صاحب کی حکومت مزید رہی تو یہ ملک نہیں رہے گا، انہوں نے ڈبو دیا ہے، برباد کر دیا ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا شکار ہو گیا ہے۔ اور حالانکہ اس وقت پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، ڈالر 175 تھا، آج ڈالر لگ بھگ 300، پیٹرول لگ بھگ 300، تو 150 روپے میں تو ملک ڈوب رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے لوگ سب اکٹھے ہو گئے، اب 300 ہے۔ عابدی صاحب اب کس طرح بچ رہا ہے ملک؟ پہلی بات تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو کی، آپ کی حکومت ہے سر، تیز بولیں آپ تو۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ ہوا، جو عمران خان کی حکومت کے خلاف جو ہم نے تحریک شروع کی، دراصل عمران خان کے 2 منصوبے تھے۔ ایک اس منصوبے کی نہیں گرائی آپ نے، گرانے کا جواز یہ بتایا کہ 150 روپے پیٹرول بہت زیادہ ہے، عوام افورڈ نہیں کر سکتے، بتا رہا ہوں نا، ڈالر 175 کا ہو گیا، عوام افورڈ نہیں کر سکتے، جی ڈی پی 6.1 تھا، اس کو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ملک تو چلا جائے گا، اس کو گھر بھیجنا ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خان صاحب جو ظاہراً بتا رہے تھے وہ کچھ اور تھا اور باطن ان کا کچھ اور تھا۔ دراصل ان کا آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا وہ انتہائی غلیظ معاہدہ تھا۔ اچھا، اور آپ کا جو معاہدہ ہے الحمدللہ ہم وہ حلال ہے، وہ حرام معاہدہ تھا؟ اچھا، یہ 2 کسی سے قرضہ لے کر، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ قرضہ لے کر ملک ترقی کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہہ رہے۔ تو کیوں لے رہے ہیں قرضہ؟ خان صاحب نے کہا میں کیوں پاؤں پڑے ہوئے آئی ایم ایف کے؟ سر بات یہ ہے کہ جس طرح ملک کو گیا 3 سال 7 مہینے 22 دن میں جس طرح ملک کا تہس نہس کیا گیا، اس کے مکمل ذمہ دار خان صاحب۔ بالکل میں مانتا ہوں 150 روپے پیٹرول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بتائیں نا کہ تباہی بربادی، 150 روپے پیٹرول تباہی بربادی تھی، ڈالر 175 تباہی بربادی تھی، آج 300 روپے ہے، تو آج کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جو عالمی منڈی میں بھی گرا ہے پیٹرول، عالمی منڈی میں جب بھی خان صاحب جو کر رہے تھے وہ خود سے کر رہے تھے، آپ کر رہے ہیں عالمی منڈی کے تحت کر رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب تو اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اچھا، وہ اپنی منمانی کر رہے تھے، پھر بھی وہ کم پیٹرول کم قیمت میں دے رہے تھے۔ تو اس نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا تھا، اس لیے 150 روپے میں ڈیفالٹ ہو رہا تھا، 300 میں کیوں نہیں ہو رہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جی ڈی پی 6.1 تھی، آپ جواب دیں، دلیل سے بات کریں۔ میں دلیل سے بات کروں۔ 6.1 جی ڈی پی خان صاحب کے دور میں، آپ کے دور میں 0.5 ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ سن لیں، نہیں ترقی بتائیں آپ۔ میں بتا رہا ہوں نا، ترقی بتا رہا ہوں، جب بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ پاکستان پیپل پارٹی 2008 میں جب حکومت سنبھالی، اس وقت یہی پیٹرول جو ہے عالمی مارکیٹ میں $110 تھا، جبکہ ہم نے تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ نے جب گھر بھیجا خان صاحب کو یہ جواز پیش کیا گیا تھا، چلے اس پر آپ کا موقف آ گیا، آئیں بائیں شائیں آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امجد آفریدی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، میں نے جو سوال پوچھا وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے دور میں اگر 150 پیٹرول مہنگا تھا، آج 300 ہے، معیشت تباہ کر کے رکھ دی۔ ہاں معیشت بتا رہا ہوں نا، ڈالر جی ڈی پی 6.1 تھا، تباہ کر کے رکھ دی۔ امجد آفریدی صاحب کیا وجہ تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کو گھر بھیجا گیا؟ تو اصل وجوہات یہی تھیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ 2 معاہدے بڑے خطرناک کر لیے تھے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے
मुझे नहीं पता कौन साहब बैठे, वाजिद आब्दी साहब हैं जी, पीपल्स पार्टी कि कॉल पर हूँ। एक तो मेरी गुजारिश है कुछ पढ़ के आ जाया करें और जिस चीज पर सवाल पूछा जाए उसी पर हम जवाब दें, तो वो नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ बेहतरीन उस अमजद पर अफरीदी साहब। चलेगा। अब देखें 150 रुपए पेट्रोल और 300 लॉन्ग मार्च चल रहा था उस वक्त, महंगाई मार्च कराची से इस्लामाबाद तक। जी जी, पूरा मीडिया, पूरे तमाम चैनल, तमाम एंकर, तमाम ये पीडीएम की पार्टियां कह रही थी मुल्क का दिवालिया निकल गया, वो महंगाई हो गई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पता नहीं किस तरह के पीटीआई ने, खान साहब ने, देखे हमने किया क्या, 3 साल हमें हुकूमत मिली, 3 साल कुछ मंथ हमें हुकूमत मिली, और 3 साल 7 महीने 22 दिन। देखें 3 साल 7 महीने 22 दिन, ये तारीख में लिखे जाएंगे। हमने इस पर जो सेहत कार्ड दिया आवाम को, जो हमने सेहत कार्ड क्या दिया किसान, आपने? आज देखो आज किसान जगह जगह रुल रहे हैं। अमजद अफरीदी साहब, आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को फायदा दिया, घपले हुए सेहत कार्ड में आपने जो दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप मुझे अपनी बारी बोलने दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको मैं आपको जवाब देता किसान जाऊंगा कार्ड, किसानों के साथ जो मामला आज तो गंदम आपने उसमें भी 300 अरब से ज्यादा का घपला निकला है। आपके दौर में भी गंदम सप्लाई हुई थी अफगानिस्तान के बॉर्डर से, पीछे पक्के के डाकू लग गए इसी दौर के, ये इसी दौर में। तो बदकिस्मती हमारी 30 साल से हुकूमत है, सिंध हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, और वही वफाक पीडीएम 2 ये दोनों पार्टियां मिलकर सिंध हुकूमत अवाम ने मुसल्लत की है रही है, और उन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया है वो सबके सामने है। फिर पेट्रोल की कीमत, आप गंदम की कीमत देखें, पेट्रोल की डॉलर देखें। डॉलर उस वक्त कह रहे थे हम ये डॉलर ले आएंगे, हम मुल्क की माशियत टाइट कर देंगे, हम ये छोड़े कुछ भी लाने को इन्हें कोई भी नहीं देगा। ओवरसीज पैसा पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं है। इन्होंने जो पैसा इस मुल्क से चोरी कर बाहर लेकर गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अमजद अफरीदी साहब? वो पैसा पूरा पाकिस्तान में ले आए, ओवरसीज आपको पैसा देंगे। हमारे कर्जे, हमारे इस मुल्क के अखराजात, ये मुल्क ठीक से चलने पर लग जाएगा। और उसके बाद आज जो ये इतने अरसे के बाद ये कच्चे गए डाकुओं के ऊपर इन्हें होश आ गया है, और ये कह रहे हैं कि हम उन पर एक्शन लेने जा रहे हैं, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी चोरी हो। अब देखे कच्चे के डाकुओं पे पीछे पक्के के डाकू लग गए, इंशाल्लाह पक्के के डाकुओं को इमरान खान खत्म करेगा। अच्छा ये बताइए, जो उन्होंने बात की उसका जवाब दीजिए कि आपने महंगाई मार्च किया था खान साहब के खिलाफ, अली सरवर तो आज उससे डबल महंगाई है। डबल महंगाई इनके कारनामे, मिस्टर यूटरन खान के कारनामे। अच्छा क्या कारनामे? बात ये है, चीनी चोर, नमक चोर, आटा चोर, आटा समझ क्या अफगानिस्तान के बॉर्डर से गंदम की, चीनी की, सब कुछ करने के बाद ये बहरान पे बुरहान कर रहे थे। अफरीदी साहब, पहले आपने गिरबान में जाको चौथी दफा जो मुसल्लत हुई अवाम, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने काम किया है जो आवाम उसे पसंद करती है। अच्छा अफरीदी साहब, आप जब कह रहे हैं कि हम पे मुसल्लत किया गया, 2018 में हम पे मुसल्लत किया गया, जबकि आप 1-2 सीट वाली पार्टी। किसने किया मुसल्लत? बस जिसने किया, जिन्होंने। नाम लेना, देखिए बात सुने, नाम ले, आवाम से छुपाए ना, जो दिल में बात है वो बात करें। नाम ले। 2018 के इलेक्शन में आवाम ने मुसल्लत किया? नहीं। फिर खलाई मखलूक ने। और अच्छा 2024 में जो हुकूमत आई है, वो देखिए बात सुने, जैसा होगा वैसा ही होगा। अच्छा अगर खान साहब ने वाजिद साहब कुछ नहीं किया था आब्दी साहब, तो फिर ये इतने ज्यादा वोट क्यों पड़ गए आजाद उम्मीदवारों को? मजलूमियत, ढोंग, यूटर्न, ड्रामेबाजी, सोशल मीडिया पे लोग पसंद करते हैं। जिस देखें लोगों को क्या पता किसने क्या, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं आप, होशियार हैं सिर्फ, लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये बहुत गलत बात है, पाकिस्तानी आवाम को आप बेवकूफ कह रहे हैं, ये गलत बात है। आपसे ज्यादा अकल शऊर रखने वाले लोग हैं, आवाम के बारे में बात नहीं कर रहा। बात ये है कि इनके सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे ये मुहिम चला रहे हैं, आप बताइए अफरीदी साहब से बात करो। अफरीदी साहब, ये जाहिर है इस वक्त तो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी आपकी जो गवर्नमेंट थी उससे डबल से भी आगे निकल चुकी। आपको क्या लगता है वजह क्या थी आपकी गवर्नमेंट को खत्म करने की? सब पार्टियां जो कहती हैं जी अदम एतमाद इसलिए किया हमने रियासत नहीं सियासत बचा ली है। देखें हमें रियासत बचा ली, सियासत कुर्बान कर दी। सियासत हमने कुर्बान की। हमें पता चला हम गुलामों के गुलाम है, अमेरिका
की ऑफर थी कि हटा दे, इन्हीं दोनों पार्टी को उन्होंने मिलकर सर आप साबित करें ना, देखिए, अमेरिका पीपल्स इसमें पार्टी मुलविस था, जमहूरियत सैफर की सुने, कहानी झूठ है। पीपल्स पार्टी सुनते रहिए। ये जनाब जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना, बेनजीर साहबा ने, मोहतरमा ने बड़ी एक जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। मगर बदकिस्मती के साथ इनके दौर में जो हमारे साथ सिंध में हुआ ना, ये 9 मई के बाद मुझे पता है कराची में कितनी बसें चली थी, मुझे पता है कराची के अंदर क्या हमारे कितने वर्करों को उठाकर, वर्करों में आम लोगों को उठाकर 4-4 महीने जेलों में रखा, जुल्म शारा फैसल पे पीपल्स बस 4 जलाई आप लोगों ने, मुझे बेनजीर की 8 करोड़ की गाड़ी आपने जला दी, अवाम के पैसे को घर कर दिया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ 9 मई को, गया था, एटीएम आप गलत बोल रहे हैं। हॉस्पिटल जल गए थे, तमाम चीजें, पूरा कराची जल गया था। मगर ये जमहूरियत के नाम पे ये दबा है, इन्होंने स्थापित कर दिया, इन्होंने जो सिंध को दिया वो सबके सामने। आप जमहूरियत के नाम पे बहुत अच्छे लोग हैं। अंग्रेजों ने सेवरेज सिस्टम डाला था कराची का, आज भी वही चल रहा है, कोई इन्होंने तब्दीली नहीं लेकर आए। ये गुजर नाला, औरंगी नाला, इस पर आपने केपीके में 10 सालों से कौन सी तब्दीली लाए हैं? हमारे दौर के अंदर बना, आप वो तमाम केपीके चीजें हमने में की। कौन सा हमने लाए देखे, हैं, मुझे हमने ये गरीबों बताएं। के लिए अफरीदी साहब 10 साल डिफॉल्ट सबसे पहले सुबह केपीके हुआ है, कराची में बसेस का स्टार्ट किया, उसके बाद ये हमें के तौर पर हमने काम शुरू किया। इस सर्कुलर आपकी BRT माला जब्बा केस क्या है? दौर में 3 साल में हमने वो काम कर दिया, सरहद जो को ये लूट के 75 खा लिया साल में केपीके दो को, पार्टियां पठानों को। सिर्फ जो ये बाजियां लेकर आती रही, ये नहीं करते रहे। ये देखिए, कभी इन्होंने कौम परस्ती की, कभी मजहब परस्ती की, कभी फिरका परस्ती की, इन्होंने इसी तरह से इस मुल्क को तकसीम पाकिस्तान किया। पीपल पार्टी एक गुलदस्ता है, इसमें पंजाबी भी है, तकसीम पठान किया। भी है, यही बलोच कभी भी है, पठानों की सिंधी बात भी है, करते, कभी महाजर भी है। पंजाबियों की बात करते, हमें पूरे आप कराची क्या बात में कर इस रहे हैं? वक्त सानियत की 21 बात सीटें हमने कभी हमारी की ही हैं। नहीं है। वो कुछ पीपल्स पार्टी खा गई, कुछ MQM खा गई, फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी हुई है, ये बड़े जमहूरी लोग हैं। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती ना, ये जमात इस्लामी के अमीर जिस तरह से अपनी सीट छोड़कर चले गए, ये भी चले जाते। ये ऐसा नहीं होता है मुल्क, जमहूरी मुल्क के अंदर। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हम फिरौनियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जमहूरियत के लिए नहीं। अच्छा, ये जो सवाल उन्होंने पूछा, इसका जवाब दें दलील से कि आपकी मुसलसल चौथी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, ऐसे क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए इन 16-17 सालों में? आप लोगों ने 22,000 अरब रुपया आपको कहा जाता है NFC की मद में मिला है, वो कहाँ खर्च किया है? सर स्कूलों में घोड़े बांधती हैं। बताएं ना, काम तो बताएं। 4 पुल बनाए, 3 सड़कें बनाई, इसके अलावा कैसे बनाए? तो फिर आप बताएं। हमने क्या हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब शाह में, खैरपुर में, आप जाए ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे हॉस्पिटलों की तारीफ की है। ये 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सरहद में एक हॉस्पिटल दिखाते हैं। हमारे सरहद से लोग, केपीके से लोग आते हैं हमारे पास यहाँ इलाज कराने के लिए, पंजाब से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, बलोचिस्तान से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। इनके पास कौन से हॉस्पिटल है? मेट्रो बसेस बनाने वालों को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। BRT क्या हुआ? BRT मंसूबा और माला जबा मंसूबा के बारे में अफरीदी साहब बताइए ना। कैसी चल रही है गाड़ी के? सिंध तो डिफॉल्ट नहीं हुआ, केपीके तो डिफॉल्ट हो गया। केपीके को तो लूट के खा गए खान साहब के पूरा खिलाड़ी। का पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है। केपीके का आप स्ट्रक्चर देखें, घरों में गुजरा हुआ है, हमारे साथ जुल्म होता है। सिस्टम देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी जितना काम पुलिस को के लिए देखें। किया है, तो गिनवाए ना आपने, ये 4 हॉस्पिटल के अलावा। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आपको एटमी टेक्नोलॉजी दी। अरे अभी की बात कर लें, सारे ले आता हूँ। जब बात सुने, आपने कहा गिनवाए, मैं पूरे शुरू से गिनवाता मैंने हूँ। तो मुसलसल चौथी हुकूमत की बात की है, मैंने मुसलसल चौथी हुकूमत की बात की है। थर प्रोजेक्ट 4 हुकूमतों में थर प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, और ठीक है, 5 इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल है। भाई कहाँ पर है? ठट्ठा से लेकर भाई गम्बट में है, नवाब शाह में है। कौन से मैंने हमने तो स्कूलों के अंदर आप केपी में आप केपी में एक हॉस्पिटल हमारे मुकाबले दिखा दें। आप बात करते हो एक हॉस्पिटल आप दिखा दे, खामोश रहो यार, आपको बात ही नहीं है, समझ आ रही नहीं है। दूध के कहानी है दूध। क्यों अपना ईमान जाया कर रहे हैं? आप अपने ईमान जाया कर रहे हैं। 10 साल में आपने केपीके लूट के खा लिया। आपने दूसरे किसी का जवाब नहीं देना। आपको मैं बता रहा हूँ, आपने लूट के खा लिया। दलील से बात करें। दलील ये है, कराची के प्रोजेक्ट, कराची में सबसे पहले, अरे कराची के अंडरपास फैसल, अरे यार 4,000 नेमतुल्लाह खान
एजुकेशन किया सिस्टम था। पीपल पार्टी ने दिया, सेहत के सिस्टम पीपल पार्टी ने दिया। इन्होंने जो सेहत कार्ड इस्तेमाल कराया है प्राइवेट, नहीं, सेहत कार्ड की तारीफ होती है, तारीफ नहीं, प्राइवेट तारीफ होती है सेहत कार्ड की। जो 2 लाख का केस है, प्राइवेट ने 8 लाख रुपए इनसे चार्ज किया है। इन्होंने अपने अपने आवाम को तो नहीं देने पड़े, आवाम को नहीं तो हुकूमत का तो पैसा जाया हुआ ना। आपने यहाँ क्या क्या किया? हमारे यहाँ तो फ्री इलाज है, कार्डियो में फ्री इलाज हो रहा है जी। अफरीज साहब, हॉस्पिटल हमारे यहाँ फ्री इलाज हो रहा है। अमजद अफरीज आप भी कराची में, अमजद अफरीज आप भी कराची में रहते हैं, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं देखिए आपने, क्यों कार्डियो में क्या है? उनसे पूछ भाई लें। साहब देखे, कार्डियो, जिना, सिविल, तीनों वफाक इन्हें देख रहा था। अगर ये इनके हाथ में होता वहां भी इन्होंने तबाही फेर देनी थी और उन्होंने तबाही की है। ओ भाई हमारे पास है, वफाक के पास नहीं है। कोई इन्होंने इदारा जब नहीं अच्छा छोड़ा। चलने लगा तो सुने, खान साहब की एक हुकूमत मिनट, ने कहा हमें दे अभी दो, हमने सुने, नहीं दिए। कितने ही हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके फंड खा चुके और वहाँ KPK पर में जो गधे आप घोड़े लोगों ने बांधे खाया हुए हैं और ये डॉक्टरों की 1 फीसें भी बिलियन चार्ज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट लेके आपने खरबों रुपए मुल्क डबो को दिए खाई जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, आपने मेरी एक BRT गुजारिश में अरबों रुपए है, खाए। ये जो पीपल्स पार्टी, सुने बात करने देना, पीपल्स सुन लें, पार्टी सुन लें। का मंशूर था रोटी अली कपड़ा सरवर साहब मकान। बात गलत कर सही रहे है, हैं। सुने, उसके बाद जवाब मैं इन्हीं की दीजिएगा। बात कर रहा हूँ। रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का मंशूर हमने था। दिया। बिल्कुल। क्या? गोली कफन कब्रिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं हमने मिला। रोटी, पंचायत का कपड़ा, मकान अड्डे दिया। आप यहाँ सुने पर मेरी बात मौजूद सुने। हैं। यहाँ पर मेरी सैंडविच बात के सुने बड़े-बड़े अफरीदी मैन साहब, हॉल हमने मौजूद रोटी, हैं। कपड़ा, मकान पानी दिया। घरों के अंदर मौजूद है। देखिए बात की आज करने भी देते ना। 60% लोग खतरे 70 गुर्बत साल से से नीचे हैं, बेइज्जती कर आपने रहे बताया हैं। किसको दे दिया? सर बात ये है, अगर आपने रोटी कपड़ा मकान दिया है आप तो दलील ये से सुनिए। एनजीओ कराची में हजारों लोग खाना खिला रही है, आप बात- रोटी कपड़ा मकान बात किसको दे रहे सुने, हैं? हम ये आपको बेरोजगार बताएं। सड़कों में सो रहे हैं, फुटपाथों में सो रहे हैं, मैयतें हो रही हैं, हम- आप रोटी कपड़ा मकान देके अली बैठे हुए सरवर हैं। साहब, अपने हमने लोगों के रोटी अलावा कपड़ा किसको मकान दिया? दिया। अपने लोगों के अलावा आपने किसको लोगों दिया? के अलावा नहीं है। तो ये क्यों सड़कों जब में बैठे हुए सुलभ का- हैं? सुन ले। सड़कों में क्यों बात हो रही है? बात सड़कों में सुन क्यों लेने सो रहे हैं में लोग? दलील से फुटपाथों बात में क्यों साबित सो रहे हैं करूंगा। लोग? बात ये दलील से एनजीओ साबित हजार करूंगा। लोगों के खाने क्यों हजारों- खिला रही है अगर आप सुने, दे रहे हैं तो? सुने, जुल्फ़िकार भुट्टो ने सर, नारा आप- लगाया रोटी कपड़ा और मकान। सुन बिल्कुल ले। बिल्कुल लगाया। रोटी कपड़ा मकान हमने दिया। उस वक्त ऐसी बेरोजगारी थी कि भुट्टो साहब ने यहाँ से गाड़ियां की गाड़ियां अरे भरी, भाई, आपने जहाजों क्या में भरा, किया? लोगों को अभी बैरून तो बात मुल्क कर में रहे हैं। मैं रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा हूँ। अभी आप क्या किया है? अभी भी पार्टी दे रही है लोगों को। दिया किसको दे मैं क्या सलाबजद खान को अभी जो मकान बना के दे रही है, कौन दे रही है? कहाँ पर दे रही है? जो KPK में सैलाब है वो इन्होंने क्या दिया? कराची में जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, वो सैलाब का इंतजार करें तब देंगे उनको नहीं, आप? कराची में भी लोगों की खिदमत हो रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं तो कराची की खिदमत सर हो रही मैं है। यहीं पर आपको 10 बेरोजगार दिखा दूंगा जो लोग कब्जा करके बात बैठे हुए ये हैं। नहीं है, बात जो देखें, बेरोजगारी- डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, बेरोजगारी क्योंकि इस उनका बात ताल्लुक से- कराची से है, नहीं, डोमिसाइल नहीं, यहाँ नहीं, से नहीं, है, नहीं, इसलिए नहीं, आप पूछते नहीं उनको। नहीं, कराची के लोगों अभी को अभी जॉब प्रोग्राम मिलती है, करने के किसने दौरान ही बुला लूं 10-20 लोगों को, आप बेरोजगारों 50 को। को बुला लें, कराची के लोगों को जॉब मिलती है, किसने का नहीं मिलती? अभी आपके सामने ले आऊंगा 2-4 वो लोगों को। आपने कहा करिंदे ले आए। अली बदकिस्मती सरवर साहब है, बात ये करने बात है, वाली करिंदे नहीं, पढ़े लिखे नौजवान पढ़े है, लिखे नौजवानों पढ़े लिखे को जॉब नौजवान मिल है, रही है। बाशऊर लोग। बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिल रही है, पढ़े लिखे लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। कराची वो शहर है कराची के जो लोग भूखों इंतजार का करते हैं, पेट बारिश भरता है। आती है, पानी आ जाता है। अच्छा चले वैसे अमजद पानी आफरीदी तो साहब, नहीं वो अमजद आफरीदी वो साहब। जो आप कहते हैं ना बारिश आती है पानी आता है, और वो भी या कनाबद तो वैया आपके कनास्तैन लीडर के कहते बाद खातमुल नबीयीन पढ़ना नहीं आता। एक्सपोर्ट से पढ़ा ये हुआ है, देखिए खातमुल कहाँ से नबीयीन बात का कहाँ लफ्ज ले नहीं जाते हैं। आता। एक्सपोर्ट से पढ़ा है, किसी मदरसे तो नहीं पढ़ा ना। नहीं, ये खातमुल क्या मिसाल नबीयीन दे तो रहे हैं? हर बंदे को आना चाहिए, कलमा आना गो है, चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लेकिन हाथ सवाल देते दलील हुए से खातमुल नबीयीन अच्छा पढ़ना आप ये चाहिए, बताइए वो इस्लाम अमजद ले आएगा। आफरीदी साहब, ये इस्लामी बताइए तर्ज पे कि चलता इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी, उस हवाले से आपकी पार्टी ने कहा है कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और बार बार तारीखें दी जा रही हैं कि खान साहब ईद से पहले आ जाएंगे, ईद के बाद आएंगे, मई में आ जाएंगे या अगस्त में आएंगे। असल सूरत हाल अपने कारकुनान को बताएं कि असल बात क्या है, क्या वाकई कोई बातचीत हो भी रही है आप लोगों की? देखिए बातचीत मुल्क के अंदर बातचीत, हम तो पहले दिन से कह रहे थे बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत भी उनसे होनी आप चाहिए। तो ज़िद सुने, पे अभी थे। बात करनी नहीं दे रहे। अच्छा मसला सुन ये लेना कि वो कह रहे हैं मौक़िफ़ तो देने दें। नहीं, अब वो तो जेर पे थे, कहाँ बातचीत करना चाह रहे थे? पूछ लेते यार, ना। अली सरवर अरे साहब वो जो पूछने कह तो रहे हैं दे। कि हम बातचीत करने के लिए तैयार थे, वो तो कहता था फलाना बंदूक की नोक पे अरे है, आप तो फलाना होते ये कौन हो, है, बातचीत मौलाना करने वाले डीजल है, आपके पास है वो क्या? क्या कुछ नहीं कहता लेने देने के था। आप लिए। बात करते हो यार, वो पंजाब का बड़ा डाकू परवेज इलाई, उसको शामिल किया, उसने बोला शेख रशीद को तो मैं चपरासी नहीं रखूंगा, उसी शेख रशीद को उसने वजीर दाखिला बना दिया। यूट्रन खान है जिसको सियासत आती नहीं है, वो हाय, क्रिकेट हाय, खेले, खुदा के वास्ते शहबाज यार मुल्क को शरीफ तबाह को- न करे एक खिलाड़ी आके। शहबाज शरीफ को खुलेआम फांसियां दे रहे थे और रोडों पर घसीट रहे थे, आज सलूट मार इसका रहे भी जवाब दे देंगे। उनके बात पीछे ये घूमे, है, क्या बातें कर उन्होंने रहे कहा, हैं? दो मैं जमातें पेट देखें। फाड़ कर निकालूंगा। जरदारी साहब के आप बारे में कहा था। जरदारी बोलते साहब रहे, एक पेट मर्द फाड़ हुर के। था,
मर्द है, उसने मुल्क को बचाया, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और हजारों केस करने के बावजूद कुछ नहीं निकाल सका, ये कुछ भी नहीं निकाल सके आप लोग, चाहे वो नवाज लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हो। जरदारी पे जिन्होंने केस किए थे उनके साथ तो आप झूठे बैठे थे, हुए, सारे केसेस झूठे जिन्होंने थे। केस किए थे, सारे जिन्होंने झूठे 11 थे। साल रखा जेल में, वो नून लीग की हुकूमत थी, उसी नून लीग की हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बने हुए थे। आपकी याददाश्त बेहतर कराने के लिए बता रहा हूं मैं अखलाकी आपको। तौर पर अखलाकी तौर। अभी भी पीटीआई को पहले कहा है कि आप आए, हम आपकी हुकूमत बनाते हैं। जी जनाब। जिस मिस्टर की जिद नहीं खत्म हो रही, टेढ़ा बंदा उसको जिद, उसकी अना और गरूर और तकब्बर ले डूबेगा उसको, और खुदा को ना अना आफरीद साहब, पसंद है, ये ना जो तकब्बर बात पसंद पीपल्स है। पार्टी वाले कर रहे हैं कि जी देखिए हमारी चौथी मुसलसल हुकूमत इसलिए आ गई कि आवाम ने वोट दे दिया, और ये कह रहे हैं हमने तो पहले हाथ बढ़ाया था पीटीआई की जानिब कि आइए हुकूमत बनाते हैं, लेकिन आप साथ चलना नहीं चाहते। देखिए हमारी हुकूमत गिराई इन्हीं लोगों ने। तो आप लोगों ने गलत काम किए थे इसलिए गिराई। आप बात नहीं करने देते ना। माशाल्लाह माशाल्लाह करें, खामोश हूं। इनके पास कोई चीज है ही नहीं, कोई इनके पास मवाद है ही नहीं बोलने को, खाली शोर ही मचाने। अल्हम्दुलिल्लाह मवाद है, आप सवाल करो मैं जवाब दूंगा तरीके से। आप जो बात रख रहे हैं वो प्रूफ के साथ रखे ना। मैं प्रूफ के साथ बीआरटी का प्रूफ देता हूँ, माला जब्बा का प्रूफ देता हूँ। अपने आपके अपने प्रूफ बोल रहा है ना, यहाँ सिंध की गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हो। आप आ जाएं स्टूडियो में, आ जाएं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, कैमरे पे दिखाऊंगा। कह रहे हैं इन्होंने अगर मुज़ाकरात करने होते, पहले तो हमारे जो फॉर्म 45 पर एमएनएज एमपीएस जीते हुए हैं उस सीटें हमें वापस दें, ठीक है। हमारी सीटें इन्हीं 2-3 पार्टियों ने खाई हैं, और फॉर्म 2018 में 40 सीटें आप लोगों ने हमारी खाई थी। 2018 नहीं, अभी की बात करें। आप बोलेंगे कल रात को खाने में क्या खाया, कल छोड़ें, आज की बात करें, आज क्या खाएंगे और किस तरह से मुल्क लेकर चल रहे हैं। 2018 में इससे बड़ा मैंडेट हमने लिया था, हमारी सीटें वहां भी खा गए थे। 239 की सीट हो गई हमारी, ये उस्मान डार वाली सीट हो गई। बहुत सारे प्रूफ आज मौजूद है। उन्होंने कहा हमने सीटें नहीं दी। तो कराची में क्या हुआ? कराची में, पंजाब, यही कराची में भी हुआ था, 18 में भी हमारी सीटें कम नहीं, अभी मैंने कहा 24 में क्या हुआ कराची में? आपकी सीटें क्या हुई? 24 में हमारी 22 सीटें कराची से हमें सीटें मिली। आप प्रूफ लाए 22 सीटों का? हमने चैलेंज है मेरा आपसे, 22 सीटों का प्रूफ लाए। हमारे कोर्ट में चले जाएं, आपको और मैं कोर्ट को छोड़े, आप आ जाएं यहाँ चैनल पे सामने आए, आप प्रूफ लाए, मैं आपको कोर्ट की छोड़े। फैसला कोर्ट नहीं करना है, कोर्ट नहीं करना है, लेकिन आप सिर्फ प्रूफ में देता हूँ, झूठ पे झूठ। मैं प्रूफ देता हूँ। हमने 1 लाख से ज्यादा वोट लिया आलमगीर खान की सीट पर, ठीक है। वो जेब कतरे के वोट उसके कर दिए। जेब कतरे इस तरह होना चाहिए ना। बात सीधी ऐसे लोगों को अफगानी को दी जाए, छोड़ो यार। मैं प्रूफ अभी देता जा रहा हूँ, 1 मिनट। नहीं, आफरीद साहब की सीट पर, हमारी डिफेंस की सीट पर, जहाँ से खुरम शेरजमान इलेक्शन लड़ रहे थे, 48,000 वोट हमें वोट पड़ा, लगभग तकरीबन 80,000 वोट पड़ा, इन्हें 15,000 वोट पड़ा, सीट इन्हें मिल गई। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं? प्रूफ कौन से प्रूफ की बात कर रहे हैं? जी 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 आपको 50,000 तो की लीड हमने ये अब्दुल कादिर पटेल वाली सीट पर मारी। वो इन्नल्लाह सादिकीन है आप लोग, बेशक अल्लाह सच्चों के साथ है। आप तो सच्चे हैं, गामन सच्चार, आपका लीडर सच्चा, आप सच्चे, आप सादिकीन में शामिल हैं। सादिक और अमीन नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये लक़ब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको तो जजों ने ये लक़ब भी दे दिया, आप सादिक और अमीन बन गए। जज मिले हुए थे इनके साथ? हाँ बिल्कुल, साकिब निसार मिला हुआ था। आप क्या बात कर रहे हैं? और आपके जो जज हैं सर? वो तो सही है ना सर, मेरी बात सुने, पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। मेरी बात सुने, अब वाले तो सही अभी हैं, काजी फैजी सा सही है, उसमें आपका एतमाद है, एतमाद आपके हक में फैसले आ रहे हैं? हमारे हक में नहीं, वो उसके साथ जुल्म नहीं किया इसने। अच्छा, उसका इस शख्स ने किस के साथ, इसने किस से अच्छा जी, अच्छा इसमें आफरीद साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस हुकूमत को क्या लग रहा है आपको 5 साल पूरे कर पाएगी, और आप लोग खान साहब के लिए क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो जल्दी बाहर आ जाएंगे? वो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ये सितंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी। ये हुकूमत चले, ये आफरीद साहब का तज़किया है, आफरीदी खबर है साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर दिसंबर में दिसंबर से पहले अगर ये हुकूमत चली गई तो मैं छोड़ देंगे, मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर नहीं गई तो आप सियासत छोड़ दीजिएगा। चैलेंज कर रहा हूँ। माल इन्होंने इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि इनसे वो माल पैसा दौलत वापस ली जाएगी।
عام آدمی کا 190 ملین پاؤنڈ کا جواب دیجئے نا، وہ سارے واپس آئیں گے، 190 ملین سارے واپس آئیں گے، ملک ریاض کے پیمنٹ، سن تو لے بیکنگ نیوز دی ہے۔ عدالت بھی آپ کی اور کیا نام ہے، ساری چیزیں آپ کو وہیں سے جواب ملیں گے ساری چیزوں کے۔ عمران خان کی رہائی چیزیں ثابت ہوں گی۔ ایک اس نے ٹرسٹ بنایا، القادر ٹرسٹ، عمران خان کو کیا چیز کی ضرورت تھی؟ ورلڈ کپ اس ملک کو جتایا، شوکت خانم اس وقت کی حکومت ورلڈ کپ پوری ٹیم نے جتوایا تھا، خان صاحب نے اکیلے نہیں جتوایا تھا، وہاں پہ بھی تکبر تھا کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اس نے ٹیم کا شکریہ ادا نہیں کیا، پوری دنیا کے اس نے اپنے آپ کو ہیرو شو کیا۔ ہیرو تھا، مانتے ہیں ہیرو تھا، لیکن کرکٹ کا، لیکن وہاں بھی عامر تھا، یہاں بھی عامر ہے۔ مسلمانوں کو قاسم عمر کی زندگی کھا گیا، میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے رحمت للعالمین کانفرنس جاوید میاں داد کے ساتھ اس نے پھر اس نے سیرت نبی کو لازم قرار دیا کتابوں میں۔ یہ دیکھیں یہ سارے کام، اور اسی لیے جلسے میں کہا جا رہا ہے یہ وقت کا پیغمبر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کی بات آئی، آج خاموش ہو کے بیٹھے۔ ہمت ہے احتجاج کر کے بتائے نا، کس سے ڈرتے ہیں یہ؟ عمران خان کے دور میں جب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، پاکٹ ان کے گنوا دیتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں، جہاں جہاں آپ نے اسٹارٹ کیا ہے وہاں سے بیک فائر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد پورے مسلمان ممالک کو پاکستان میں بلا کے کانفرنس کرائی جاتی ہے۔ آپ بتائیں ذوالفقار بھٹو نے کرائی ہے، اس نے کون سا ملیشیا کے صدر سے بات کر کے مکر گیا جب سعودی عرب سے بات ہوئی۔ طیب اردگان نے کہا یہ کیسا بندہ یوں ٹرن لے گیا۔ آپ کے بھٹو صاحب سے لے کر آج تک جتنی بھی آپ کی پاکستان کی تاریخ میں لیڈرشپ آئی ہے، وہ مل کے ان 3 سالوں کے حساب نہیں دے سکتی۔ آپ 3 سالوں کا حساب دے، گنوائیں کیا کیا بنایا ہے ایک کرتارپور بارڈر کے علاوہ، اور کرتارپور بارڈر بھی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے قادیانی دلی کی طرف سے گھوم کے جاتے تھے، نہیں بات کرنے دو نا۔ کرتارپور بارڈر کھولا اس لیے کہ کرتارپور بارڈر سے 24 کلومیٹر دور قادیان ہے۔ اچھا یہ پتہ نہیں، نہیں میں بات سیدھی کر رہا ہوں، میں چیلنج پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں، سنیں میں چیلنج پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ ہم مہنگی کر رہے ہیں لیکن ایک ترقیاتی کام کرائے، باقی ثابت کرانے کا کیا کیا ہے اس میں؟ بتائیں 3000 روپے تو 2500 روپے گندم آپ فی من اٹھا رہے ہیں غریب آدمی سے، وہ کس طرح افغانستان گندم کس نے برآمد کی؟ کتنے ہوئے ہیں؟ افغانستان کے بارڈر سے گندم کس نے بھجوائی؟ تحریک طالبان والوں کو کس نے آزادی دلائی؟ اس ملک میں دہشت گردی دوبارہ کس نے پھیلائی؟ اس ملک سے چینی چور کون تھے جنہوں نے چینی کو کہا؟ اس ملک میں نمک چور کون تھے؟ دیکھیں خان صاحب، میری آج ایک بات سن لیں افریدی صاحب، خان صاحب اگر ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا تو پہلے اپنے سے احتساب شروع کرتا، جو کیلیفورنیا کی عدالت میں اس کے خلاف ایک کیس جو ہے اس کے خلاف آیا ہوا تھا، یہ دیکھیں پہلے یہ سنسار ہوتا پھر یہ چوروں کو پکڑتا۔ نہیں، تھوڑا اسٹڈی کر کے آیا کریں، اسٹڈی کر کے آیا کرتا ہوں، جو آپ سوال کریں گے آپ ٹیچر اٹھا لیں گے، میں آپ کو پوری باتیں بتاؤں گا۔ پاکستان میں مریض روڈوں پر ہیں اور کسان جو ہے ان کا جواب دیجیے نا، کسانوں گندم کوئی اٹھانے کو تیار نہیں، وہ بیچارے بات یہ ہے، سنیں بات یہ ہے، کسانوں کے ساتھ حکومت نہیں ظلم کر رہی ہے، حکومت ایکشن لے چکی ہے، کسانوں کے بارے میں حکومت ایکشن لے چکی ہے۔ کر کے بتا دیں، ابھی کچھ کر لیں، خدا را ابھی کچھ کر لو، ابھی بھی حکومت آپ کی ہے۔ نہیں ہم تو کر رہے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ کیا۔ روز کتنے لوگوں کے موبائل چھن جاتے ہیں، نہیں آج کراچی میں روزانہ کی یہ افریقہ کی بات درست ہے، آپ کی اسٹریٹ کرائم بھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں تو اسٹریٹ کرائم پہ آپ کیونکہ آپ کا چھینا نہیں، آپ کے رشتہ دار ہے، کسی کا چھینا نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں۔ پچھلے 3 ماہ میں 65 افراد مر گئے، اللہ نہ کرے آپ کا کوئی جاننے والا ہو، لیکن 2-4 دفعہ میرے بیٹے سے موبائل چھینا ہے، مجھ سے تو موبائل پیس چھینا پارٹی ہے۔ سے تعلق ہے، سیاستدان ہے، پھر نہیں لے لیا ہوگا آپ نے۔ غریب عوام بیچارے جن کی 35,000 تنخواہ، 30,000 تنخواہ، 40,000 تنخواہ، وہ موبائل کیسے لے گا؟ سنیں، اس ملک میں جو اس شہر میں جو شہر سے باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں نا، جو افغانستان بارڈر سے یہاں آئے ہوئے، جن کو آپ لوگوں نے ہتھیار بنوا کے دیے، ہم نے نہیں، خان صاحب نے اس پہ کہا کہ افغانستان چھوڑ دے، وہ کر رہے ہیں سب کچھ، وہ سب کچھ کر رہے ہیں کیا
जो बाहर से आए हुए ये जो रेडियो पाकिस्तान पे अरे जो पूछो मैं तो आपसे, जलाया था वही कर रहे हैं। अखबानी पकड़े गए ना। आजकल का 5 स्ट्रीट साल का बच्चा ये बातें स्ट्रीट करेगा क्राइम में जो भी ये- मुलविस हैं। करें ना कार्रवाई, हाँ, कार्रवाई हो रही है। कौन सी कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं हो रही? अब नजर नहीं आ रहा? तो ये 65 आदमी कैसे मर गए? नहीं, 65 आदमी जो मरे हैं, कराची वालों को देखें, इंसान नहीं समझते? कराची इज द बिग सिटी। तो समझे ना इंसान दो उनको, दुनिया के दो कराची मुल्क- चलता दो- है तो पूरा दो- मुल्क चलता है दो- भाईजान, दो शहर हैं। रेवेन्यू सबसे ज्यादा कमाकर मेक्सिको 70% देता है। एक मेक्सिको सिटी, एक हालांकि कराची, दोनों सिस्टर नहीं है। जहाँ जराइम के जो शरह है, देखें लंदन में वहाँ पे जराइम यार होते आप- हैं, लाहौर में जराइम अभी नहीं हो रहे, इतने पेशावर में नहीं है ना, हो रहे। कराची इतने नहीं है। सर कराची इतना बड़ा शहर है, मानते हैं इसको आप? हाँ मैं कितना मानता बड़ा हूँ। माने इसकी आबादी थी 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ नहीं है, ये इससे बड़ा झूठ क्या भाई, होगा? नहीं नहीं झूठ संभाल नहीं, सकते, छोड़ साबित देना। करूंगा यार। अली सरवर आप 3.5 है। करोड़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब से आया है, जिसने अपना शनाख्ती कार्ड भाई, पंजाब का इनके रखा पास हुआ है, यही यहाँ जवाब घर सुन लिया लें हुआ जी, है। जी अफरीदी साहब, सुने, सुने। अफरीदी साहब पानी पिए, पानी पिए, बदकिस्मती अफरीदी है, साहब। इनके पास जवाब नहीं है, कराची बहुत बड़ा शहर है। अरे खांसी हो गई ना, तो महंगाई पानी बहुत पिए। है। नहीं नहीं नहीं, ये बात मत पी ले, करो, पी ले, अरे पी ले। रहने ये दो। कर दिया था। जो लोग हम पानी पिलाने वाले हैं, रोकने वाले नहीं, पिए पिए। जो लोग केपीके से आए हुए हैं, जिनका एड्रेस पूरे केपीके कराची का को है, जो पानी नहीं मिल बलोचिस्तान रहा, से आए हुए हैं, जिनका एड्रेस डकैतियां बलोचिस्तान खुलेआम का है, हो जो- रही सुन तो ले, वो दूसरी बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। नौकरी किसी नहीं है। आपने लोग 3.5 साल में एक 14 नौकरी दी। अरे अपना जवाब देना, वो उन्होंने नहीं दिए, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं दिए उन्होंने। आप बताएं अपना। हमारे 3 साल तो हमने दिए, उन्होंने- पाकिस्तान मैं पीपल तो पार्टी गिनवा हमेशा चुका हूं हमने जो नौकरी काम देती किया यार है। ये अभी जो स्टूडियो से आपने हमारे बाहर सोचा निकलेंगे नहीं, ना, हमने वो काम जैसे किया है। बाहर निकलेंगे सारे बेरोजगारों में नजर पड़ेगी अली आप। सरवर भाई, हमने प्लीज औरंगी दरवाजा खोलती बेरोजगारों में नजर पड़ेगी आप। प्लीज प्लीज, आप जो नहीं, बात बस करें, के असल में फॉर- मसला पता क्या है? आप बताएं, मैं सुन ले, गिनवाता सुन ले। जा रहा हूं, आप लिखते जाएं हमने कराची में क्या क्या किया है 3 क्या सालों किया में। जी बताइए। हाँ, हमने K4 पर काम किया, हमने बसेस दी कराची को, हमने फायर बसेस दी कराची को, हमने गुजर नाला, औरंगी नाला और इस पर काम करवाया, सफाई सुथराई करवाई, हमने पूरा क्लीन कराची का प्रोजेक्ट चलाए, हमने कराची ये वो के- तमाम काम वो कौन कह रहे हैं सा जी हमने प्रोजेक्ट किए हैं। आपने कौन चले जी, सा किया है? आप- अमजद सुने, सर्कुलर अमजद रेलवे अफरीदी हमने साहब, अमजद अफरीदी एक साहब। काम के लिए भी आपने फंड नहीं दिया। सर थोड़ी सी बहुत शुक्रिया अमजद अफरीदी साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जी जो सवालात उठाए हैं अमजद अफरीदी साहब ने, हम कोशिश करते हैं क्योंकि वो तो ज़ाहिर दोनों गेस्ट थे, आपस में बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आपको भी हो सकता है आवाज़ का इशू हुआ हो। जो उन्होंने बात की है कि जी एक ये जो प्रोजेक्ट है ख़ास तौर पर कराची में, आप जानते हैं, आप भी अगर यहीं रहते हैं गुज़िश्ता 30-40 साल से, तो बुज़ुर्गों आपसे ये सवाल है, बुजुर्गों ये फारसी ज़बान के लफ्ज़ में कहा है, उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्र तो आप ज़ाहिर है मुझसे छोटे ही होंगे आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं ऐसी है। बात नहीं है। हाँ। चलिए, लेकिन ये ऐसी बात भी नहीं कहने है। का मकसद ये आप है, मेरे छोटे भाई हैं, आप चलिए, बात करें। बड़ी नवाजिश। अब बात ये है कि K4 जब तक कंप्लीट नहीं होगा, कराची की जो पानी की ज़रूरत है वो कंप्लीट नहीं होगी। 2008 का प्रोजेक्ट 2024 में हम बात कर रहे हैं, 16 साल गुजर गए, 16 साल से आप ही की हुकूमत है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। कितनी सदियाँ चाहिए आपको जब पानी मिलेगा कराची वालों को? नहीं देखिए, मेरी पहली बात सुने, आपने K4 के प्रोजेक्ट की बात की। K4 का प्रोजेक्ट में वफाक था इन्वॉल्व। जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत चली गई, उसके बाद वफाक ने K4 के लिए हमें कोई फंड नहीं दिया, जो कि उनका हिस्सा था। अच्छा, आप वफाक में आपकी हुकूमत कब चली गई? सुनने 2013 में। अच्छा, 8 का प्रोजेक्ट है, 13 में चले गए, 5 साल आपने कुछ नहीं किया, मान रहे हैं हमने ना? काम किया। 5 साल में आप आधा समझते प्रोजेक्ट हैं कि हमने- ये प्रोजेक्ट जो है, नहीं, 5 ये साल मालूम है में- आपको कितने नहीं। साल का प्रोजेक्ट था? कितने साल का प्रोजेक्ट? 2 साल का। 2-2.5 साल में हो जाना चाहिए था, है ना? तो 5 साल आपको शर्मिंदगी है उस बात पे? आपको शर्मिंदगी नहीं है? सुने, शर्मिंदगी है ना? माने क्या यार हमसे गलती हुई है? हाँ, गलती माने आप, कोताही कैमरे में है। कहें आप गलती है आपकी? नहीं नहीं, कोताही है हुकूमत की कोताही आपकी? है। कोताही मान लीजिए, बड़ी बात ये है, कोताही है। लेकिन ये भी नहीं है कि हुकूमत ने काम नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। K4 पे बताएं अब आप। K4 के बारे में जब ये हुए, हमारी हुकूमत जब चली गई, हमें फंड मुहैया नहीं किए। जैसे ये जो प्रोजेक्ट फंड दे के जाते हैं ना आप लोग, क्यों नहीं देके गए? सर आप ये बताएं कि जब हमारी हुकूमत आई थी 2008 में, जाते हुए क्यों नहीं सुन देकर सुन- गए? सुन ले, कंप्लीट सुन करा ले, देते। सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन आपकी ले, अली हुकूमत आई सरवर तो- साहब सुन ले। हमारा वजीर खजाना इसाक डार था पहला, ठीक है। 2008 के इलेक्शन में जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई, उसका वजीर खजाना इसाक डार था। क्यों बनाया था? कोऑर्डिनेशन क्यों जो बनाया है, था? सुन ले, सुन ले, क्यों बनाया था? सुन ले, बता के जाए ना लोगों को। सर कोऑर्डिनेशन थी जो मिसाक जमहूरियत लंदन में बीबी ने अच्छा। किया था, उस पे अमल दरामद करने के लिए काम हुआ। उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खजाना खाली, आपने मान लिया कुछ फौरन? भी नहीं दी।
खजाने में कुछ नहीं। अच्छा, जब आप गए उस वक्त भी खाली था? नहीं, उस वक्त भरा हुआ था? हमारा हम खजाना भरा हुआ था? हाँ। तो देके जाते K4 के लिए पैसे, इसका मतलब चाहते नहीं थे आप नहीं, कंप्लीट हो। जब ये- खजाना ये- भरा हुआ छोड़ कर जा रहे हैं बात ये है आप, कि जब सुनिए- भरा हुआ छोड़ कर जा रहे हैं तो पैसे सुनिए, क्यों नहीं सुनिए, दिए? सरवर साहब, कराची वालों से सुनिए, दुश्मनी ना करें आप, कराची वालों तासुब, से- क्योंकि वोट ही मिलता है ना आपको यहाँ नहीं, से। नहीं, वोट क्यों नहीं इसलिए मिलता? वोट मिलता है, आवाम हमें पसंद करती है। ये किसने कह दिया? 15 सीटें MKM जीती है यहाँ से। सर 15 सीटें छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें, प्लीज छोड़ दें। कल मुलाकात हुई सर आपसे, नहीं, सर आपके प्लीज। दोस्त हैं अब तो? बात ये है कि अब दोस्त हुए ना, कल तक वो भी हमारे खिलाफ थे। खिलाफ थे आपके? देखो, और आप उनके खिलाफ थे? सुनो सुनो, सियासत हमने कभी सियासत में मुखालफत नहीं की। अच्छा। हमने इखलाकियात के उनके खिलाफ ऑपरेशन कर लिए, सब कुछ कर लिया, सर आपने नहीं, मुखालिफत वो नहीं की। बात खैर ये बहरहाल मकसद ये है, असल बात ये है कि K4 K4 इंशाल्लाह- कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक है, इंशाल्लाह अब इस कंप्लीट पे आ हो जाए स्ट्रीट क्राइम का ये। अच्छा, हमारे साथ जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर हैं महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। हमारे साथ वाजिद आब्दी साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम जानना ही चाह रहे हैं कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, लोगों के ख़ासतौर पर जब से हुकूमत गई PTI की, फिर 18 माह की हुकूमत आ गई, फिर निगरान हुकूमत आ गई, अब फिर एक गवर्नमेंट आ चुकी, लेकिन सर ये मसाइल लोगों के हल नहीं हो रहे हैं। आपका तज़किया क्या है इस हवाले से कि इस तरफ तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की, या मसाइल ये इतने बड़े हैं कि फ़िलहाल भूल जाए आवाम इसको कि महंगाई में, गुर्बत में कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कहूँगा मसाइल बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और गवर्नमेंट कर भी रही है। आपको मैं एग्जांपल दूं, देखें महंगाई बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो चुकी है, मगर कुछ चीज़ें इंटरनेशनल है, कुछ चीज़ लोकल इनके हाथ में। आप पहली चीज़ जो कम हुई है वो आप देखें, जिसके ऊपर आजकल बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है माइलेज लेना चाह रही है, जिसमें PTI भी है, जिसमें आज जमात इस्लामी भी है। आप देखें आटा आज 92 रुपए किलो मिल रहा है और 55 रुपए किलो दुकानों पे। आज से 8 महीना पहले और उन दौरों में 180-160 रुपए किलो था। तो सही। आधा कीमत आधी हो गई है, उसके ऊपर लोग पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं कि जी कीमतें हौसला कम मिला क्यों आपको। हुई है। देखिए इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई नान बिकेगा 15 रुपए, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि जी अभी इसके ऊपर डिसीजन ना लिया जाए। आप ये देखें, हम अवाम की जो लोग बात कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने के बजाय उनको स्टे दे दिया कि नहीं जी उनकी कीमत हम वेरीफाई करेंगे, और मेरा ख्याल से 7 या 9 तारीख को फिर दोबारा केस और आराम है सर। देखें। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो जब तक सब पार्टीज मिल के ये नहीं करेंगे तो फिर तो हम तबाही की तरफ जाएंगे। देखिए, कुछ चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए हमको, जो है पॉलिटिक्स भरा, जिसको होते ना तनकीद भरा तनकीद नहीं, तनकीद भरा इस्लाह होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ये इस जो वक्त है ना, जो मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी अच्छी काम कर रही है इस वक्त, क्योंकि उसकी वजह से कि उनका रोल ये है कि वो सिंध में डोमिनेट कर रहे हैं और वफाक में प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं। तो वो मफाहमत का रोल जो मेरे जरदारी साहब की एक्सपर्टीज है, वो इसको इस वक्त वो भी हल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कल मैंने देखा, अच्छा, लेकिन इसमें कराची के हिसाब से MKM के साथ भी बात हो रही है। जी जी कल मुलाकात हुई उनकी। लेकिन महमूद मौलवी साहब, ये जो जब हम बात करते हैं कि जी सबको मिलकर साथ चलना चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, तो फिर चूंकि एक बड़ी जमात तो है ना, 82 सीटें हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी अब तो ऐलान कर दिया PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, तो उनको साथ लेकर फिर किस तरह चलेंगे? क्योंकि उनकी तो शर्त ये है कि जी सियासी मुकदमात हैं हमारे लोगों के खिलाफ, वापस लिए जाएँ। देखें, वो अपनी शर्तें बिल्कुल रखें, मगर ऐसी शर्तें रखें जो कि होने जैसी हो ना। आप मुझे बताएं, जब अभी तो ये हुआ भी नहीं, गवर्नमेंट गिरी नहीं थी, जब कहा गया था कि पीपल्स पार्टी से और PMLN से बात कर लो, मैं आपको बात कर रहा हूँ 2 साल पहले, 3 साल पहले, जी जी सही। उनके लीडर कहते थे कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सबको चोर। अगर वो सिर्फ अपनी पार्टी को साहूकार समझे और बाकी सारी पार्टियों को चोर समझे, तो इस हिसाब से सियासत भी नहीं होता और मुल्क भी आगे नहीं चले। तो इसका फिर हल क्या है वाजिद साहब? मौलवी मोहम्मद और साहब, ये कि जी मौलवी साहब, बात दरअसल ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 अशखास सरकार के पास है। एक ने कहा या रसूलल्लाह सारी दुनिया बेईमान है, हजूर ने फरमाया आप ठीक कह रहे हैं। दूसरे ने कहा आधी दुनिया बेईमान है, आधी ईमानदार है, हजूर ने फरमाया आप भी ठीक कह रहे हैं। तीसरे ने कहा सरकार सारी दुनिया ईमानदार है, हजूर ने फरमाया आप भी ठीक कह रहे हैं। जब सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह सवाल मुख्तलिफ जवाब ठीक, तो सरकार ने फरमाया जिसने कहा सारी दुनिया बेईमान है वो खुद बेईमान है, जिसने कहा आधी दुनिया बेईमान है आधी ईमानदार है वो इधर ईमानदारी देखता है तो ईमानदारी करता है, इधर बेईमानी देखता है तो वो बेईमानी करता है, और जिसने कहा सारी दुनिया ईमानदार है वो बजाते खुद ईमानदार है। ये बजाते खुद चोर था, इसकी नज़र में सारे चोर हैं। बात ये है, ये यूटर्न खान है, ये बुज़दिल का। मौलवी साहब, आप भी इसकी
पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मुल्क को, तमाम पार्टियों को एक टेबल पे बैठ के मुल्क की सोचनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई में जो है इस वक्त 29.30 पे जाके 22.30 पे आ चुकी है, इंशाल्लाह मजीद नीचे आ जाएगी। देखिए मैं तो खुद कह रहा हूँ कि नीचे आ गई है ना। देखिए मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मैंने क्या कहा, लेकिन इसने नहीं बैठा महमूद साहब, इसने नहीं बैठना, इसकी मिन्नत कर लो। इसने बोला दूध काला है तो काला ही है, कभी ये सुबह मानेगा ही नहीं। इतना अगर ये नहीं बैठेंगे ये कामयाब नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता। अच्छा नहीं, ये ताजिर बरादरी ने भी, आरिफ हबीब साहब ने, आपको याद होगा अभी आए थे तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया था सामने उनके कि जी सबसे बात कर रहे हैं तो उनसे भी कर लें, और वो उन्होंने भी एक टीम बना दी है, वो कहते हैं जी हम भी बात करने को तैयार हैं। तो आप समझते हैं इसमें महमूद मौलवी साहब के ये बात अच्छी है कि उन्होंने टीम बना दी है, बात करनी चाहिए उनसे भी ताकि आगे बढ़े सबको लेके? टीम बना दी, बात करनी चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं बात करनी चाहिए। सियासत नाम ही बात करने का, टेबल पे बैठने का नाम सियासत है, रोडों पे पत्थर मारने का नाम तो सियासत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, स्टॉक एक्सचेंज अगर इतनी ऊपर जा रही है तो इसका कितना असर पड़ता है इकोनॉमी पर पाकिस्तान की? देखिए इकोनॉमी पे असर पड़ता है, और मैं आपको बताऊं स्टॉक एक्सचेंज बहुत जल्द 1 लाख के उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा ये बड़ी खबर सुनाई सर आपने, खुशखबरी है पाकिस्तान की। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह ये है कि देखें चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और लोग जो है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो आपको माइनिंग सेक्टर और मिनरल सेक्टर के ऊपर आप देखें उसमें भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चीज़ों को पॉजिटिव देखें तो बहुत अच्छा है सर, आपकी देखेंगे तो वो आपको गलत है। सर सिंध में इलेक्शन के बाद क्या कहेंगे? इलेक्शन में आप लोगों की सिंध के देखिए सिंध में इलेक्शन के बाद मैं कहूँगा आप पीपल्स पार्टी काम कर रही है, मगर मैं फिर पीपल्स पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अंदाज हुकूमत पिछला वाला चेंज करके इस हालात को और इस मुल्क के मसाइल को देखते हुए अंदाज हुकूमत को भी थोड़ा तब्दील करें। बिल्कुल मेरे भाई हैं वो, मगर मैं कहूँगा अंदाज हुकूमत को पहले क्या था सर, क्या गलत था उनका? नहीं देखिए मैं ये अब देखे ना, मैं इन चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ कि गलत था, मगर मैं कह रहा हूँ अंदाज हुकूमत को तब्दील करें, मुल्क के हालात को और माशी हालात को और अवाम के हालात को समझते हुए। बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जब से मर्ज़ वजूद में आई है वो अवामी खिदमात के सिलसिले में बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दे चुकी है और मज़ीद कर रही है। मामलात जो माशी तौर पर जो सर की बात ना करें कि आप अच्छे कारनामे आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जीत गए पंजाब में? नहीं चाहते ना, क्यों नहीं केपी में जीत गए आप? देखें वो सर ये ना करें ना, गलतियां कोताहियां हैं, तस्लीम करें। उन्होंने कहा कि आपको तब्दीली लानी पड़ेगी। पंजाब में जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी को समेटा गया है, इसी तरह फिर नवाज लीग को समेटने की कोशिश की गई, और आने वाले वक्तों में ये सब जानते हैं, इस बात को छोड़ दें, पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोट बैंक आज भी पंजाब में। सर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध में कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, लोगों ने वोट नहीं दिया, या आप भी समझते हैं धांधली हुई है? जी महमूद मौलवी साहब। अच्छा उनसे रब्ता प्रोग्राम के आखिर में सर इतनी बातें गुफ्तगू हुई, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी 2 मिनट बाकी है मेरे पास। हम चाहते हैं कि इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि कुछ जिस तरह की खुशखबरी सुनाएं आपकी हुकूमत सिंध के हवाले से, ख़ास तौर पर क्या ऐसे काम करने जा रही है कि जिसमें आवाम को, जिसमें आपने ठंडी सांस ली, आवाम भी ठंडी सांसें लेना चाहती है, पुरसुकून सांसें लेना चाहती है। बताइए क्या कुछ कर रहे हैं साहब जिसकी वजह से आवाम को मज़ीद बेहतरी आएगी? सर पाकिस्तान पीपल पार्टी आपकी कराची का जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है उसको मज़ीद बेहतर करने जा रही है। हॉस्पिटल कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में? देखें प्रोजेक्ट जो है कराची के 3 प्रोजेक्ट जो हैं, आपको शायद नहीं पता, जो खुफिया हैं कोई, वो अभी आ जाएंगे सामने आपके। ऐसे प्रोजेक्ट तो खुशखबरी देना, छुपाने वाली क्या बात है? आवाम के लिए है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इस दौर में जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया करेगी, और हर हालत में इन 6-7 महीने में रोज़गार जो है, वो जो बेरोज़गार नौजवान है रोज़गार में आ जाएंगे। जितने बेरोज़गार तो कह रहे हैं 6-7 साल हो गए, राब्ते में भी हैं लोगों के, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ उनके लिए। सर बात पता क्या है कि जब भी हमने रोज़गार के लिए स्टार्ट किया, अदलिया ने उस पर बैंड लगा दिया। बात यह है, अलमिया यह है कि इस वक्त रियासत में ये जो 4 सतून है, ये जो 4 सतून है ये आपस में टकराए खड़े हैं,
اور میں یہ سمجھتا ہوں مطلب بے روزگار کیا امید رکھیں پھر آپ سے؟ انشاءاللہ آپ کام ہوگا، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جون کے ہمارے پروگرام میں بول کے جا رہے ہیں آپ اگلے 2 مہینوں میں، انشاءاللہ 2 مہینے میں پاکستان بڑی خوشخبری پیپل دی ہے جن پارٹی کراچی کے بے روزگار نوجوانوں کو کے روزگار لیے مہیا کرے گی. کراچی کے عوام کے لیے جو غریب ہیں ان کو گھروں کا بھی اعلان ہوا ہے، وہ بھی دیں گے. جتنی عوام کو سہولت دے سکتے پاکستان پیپل پارٹی دے گی سہولتیں. انشاءاللہ. اور اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کوئی بڑا اقدام کر رہے ہیں سر، تاکہ لوگوں کو جو گھروں سے باہر جی، بیچارے بالکل، گھر سے بالکل. روزگار کے ابھی لیے آپ نے نکلتے ہیں دیکھا، اور ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جناب زرداری صاحب نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا اور اس نے سختی سے کہا جناب صدر صاحب نے کہ میں یہ جرائم نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا، یہ زرداری صاحب کو اسلام آباد میں بیٹھے پتہ چل گیا، آپ کے وزیر اعلیٰ کو نہیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر؟ نہیں، وزیر اعلیٰ کراچی کے صدر کو نہیں پتہ؟ وزیر آپ کے وزراء کو نہیں پتہ؟ وزیر اعلیٰ سرگرم ہے کیا ہمارے سرگرم ہے؟ 3 مہینے میں بات یہ ہے 65 کہ آدمی آپ مر گئے، دیکھیں آپ سرگرم ہیں سر، کہاں بات سرگرم یہ ہے؟ ہے کہ پہلے آئی جی جو تھا سندھ کا وہ وفاق کی طرف سے الیکشن کے دوران آیا ہوا تھا. اب انہوں نے اپنا آئی جی لگا لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو اقدامات ہیں وہ ان چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے. اسٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہو جائے گی. بات دراصل یہ ہے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ آپ جو ہے یہ جو جواز پیش نہ کریں، میں آپ کی جواز حکومت نہیں ہے 16 سال سے ہماری حکومت سیف کام سٹی کر رہی ہے. پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکے، پورے کراچی میں کیمرے لگنے چاہیے تھے، آپ بنا نہیں سکے اب تک. سر پہلے کیمرے پوری کراچی میں کہاں ہے سیف سٹی؟ آج تک نہیں بن سکا. 80% ارے سر کہاں سے اپنی مدد، آپ کے جنہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ان کی اپنی سی مدد سی ٹی آپ فوٹیج کے دیکھتے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے کہاں لگائے 80% کیا بتائیں مجھے کراچی میں؟ شارع فیصل پہ لگے ہوئے ہیں. پورے شارع فیصل پہ نہیں ہے سر، کس نے بتا دیا آپ کو؟ سنیں ایم اے جناح روڈ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اس طرف جائیں. 3 کروڑ کی آبادی والا شہر، 2 سڑکوں پر. نہیں یہ بڑی شرح ہے، یہ چھوٹی شرح نہیں ہے. اب گلی کوچے میں تو گورنمنٹ اچھا، جن کا نقصان ہو رہا ہے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جن کو مار دیا گیا، جن کے موبائل چھین لیے گئے، حکومت ان کو ریلیف دے گی. کیونکہ یہ کب دے گی؟ جو بھی حادثے ہوئے ہیں اس میں حکومت ذمہ دار نہیں ہے. سر یہ بتائیے، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ شہر میں کچھ بھی ہو جائے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ سر بات یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے. کس کو ذمہ دار؟ امریکہ کو ذمہ دار سمجھیں؟ برطانیہ کو؟ حکومت آپ کی ہے، ذمہ داری آپ ڈالیں گے تو تیار نہیں. سر یہ آخر میں پروگرام کے بہت ہی غلط بات آپ نے کی ہے. میری بات سنیں، میں نے غلط بات نہیں کی. آپ کی حکومت اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ سنیں میری پہلے بات سن لیں. ذمہ داری کس کی ہے؟ میری بات سن. کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. تو ابھی تو ہم کر رہے تھے آپ. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. جو جملہ میرا پورا سنا نہیں، آپ نے پہلے ہی اس کو کر دیا. چلیں آخری کمنٹ آپ کی. حکومت کی ذمہ داری ہے کراچی کیا پورے سندھ میں امن امان کی. حکومت کی ذمہ داری. کچے کے ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے ہیں یا پکے کے ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے ہیں؟ آپ سمجھ نہیں آ رہی بات. سر کچے کے ڈاکو وہاں ڈیرہ غازی خان میں چھوٹو گینگ، جہاں تو ایک ریاستیں بنی ہوئی. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کچے کے ڈاکو نہیں پتا آپ کو گھوٹکی میں؟ نہیں، گھوٹکی میں کچے کے ڈاکو ہیں تو حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی. کتنے 16 سال تو آپ کی حکومت ہو گئی ہے، کب ختم ہو گئے؟ کتنے لاکھ ہیں وہ جو آپ سے عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ ٹوٹل 3000. سر کتنے پولیس والے شہید ہوئے؟ کتنی پولیس والوں نے شہادتیں اٹھائی؟ آپریشن کیوں نہیں ہو رہے؟ کراچی میں آپریشن ہو سکتا ہے تو کچے کے ڈاکو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. کچے کے ڈاکو میں کیوں نہیں ہو سکتا جب کراچی میں ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے. کیا کچے کے ڈاکو میں آپریشن نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھ روزانہ وہ پولیس والوں کو اغوا کر رہے ہیں، موبائلیں لے جا رہے ہیں، راکٹ لانچر کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ریاست جواز نہ تراشیں، عوام کو بتائیں کیسے کم ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی قانون نافذ والے ادارے کام کر رہے ہیں. آپ کو رزلٹ مل جائے گا اسی 1 مہینے میں. کچے کے ڈاکوؤں پہ اور چھوٹو گینگ پہ جو پنجاب میں. چھوٹو کیا سندھ کی بات کر لیں، یہاں چھوٹو موٹو سب ہیں. سنو یہ سندھ کا بارڈر، اس سے بارڈر نہ سمجھائیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ پکڑے کیوں نہیں گئے اب تک آپ سے؟ سر پکڑے جائیں گے، مارے جا رہے ہیں. مطلب 16 سال میں 2000 ڈاکو نہیں پکڑ سکے تو اور سر میری ایک بات سنیں. گورنمنٹ اپنی لیڈ قائم نہیں کر سکی. علی سرور صاحب بات یہ ہے کہ اس چیزوں میں آپ کو پتہ ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جب بھی میں یہ بات، جب بھی گندم کی کٹائی آئی ہے، میں چینل پہ کہہ رہا ہوں، اس دوران زیادہ کچے کے ڈاکو سرگرم نہیں ہو جاتے. اچھا پھر ویسے کہاں چلے جاتے ہیں یہ؟ بات میری پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ بات سن لیں. چلیں آپ کی بات مان لی میں نے، باقی دنوں میں کہاں رہتے ہیں؟ بات یہ ہے سسٹم جو ہے ان کا چل رہا ہے. ان کا سسٹم آپ کی مدد سے چل رہا ہے؟ ہماری مدد سے نہیں چل رہا. کسی مدد سے چل رہا ہے؟ وہ بھی خلائی مغلوں کی مدد سے چل رہا ہے. اللہ اکبر، ہر بات خلائی مغلوں پہ فرشتے آتے ہیں. سن لیں، خلائی مغلوں پہ ہر بات پہ الزام لگا دیا انہوں نے. بہت شکریہ واجد عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. گفتگو آپ نے سنی. پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں
تو بہت سارے وعدے وعید ہوتے ہیں. آج عابدی صاحب نے بھی کیے ہیں, دیکھتے ہیں جی جو خوشخبریاں انہوں نے عوام کو دی ہیں روزگار کے حوالے سے خاص طور پر, اور اسٹریٹ کرمنل کا خاتمہ, کچے کے ڈاکوں کا خاتمہ, گھر بنا کر دیں گے, ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں ہمارے پروگرام سے. لیکن اس پروگرام کو ہم ریکارڈ پر رکھیں گے اور نیکسٹ ٹائم جب یہ آئے تو ان سے ہم دکھا کے پوچھیں گے جناب یہ 7 دنوں میں نوکری ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو آپ نے دینی تھی, اسٹریٹ کرمنل کا بات نہیں کی, 7 دنوں کی کسی کو تو آپ نے اتوار کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن اتوار میں بات نہیں وہ تو ہم نے کیا. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, ہم پروگرام کو پسند کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا ہو تو ہمارا پیج بھی موجود ہے, ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے, اس پر ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. بھلا کے مان.